Hello students, welcome to class 11th. After passing 10th, now you are in class 11th. Here I am Devendra Kumar welcoming you in physics class. I will teach you physics. Physics is very important subject and one of the key subject in class 11 science. By now you have studied science, means physics, chemistry and biology combined, but here physics is a separate full-fledged subject. What is the syllabus of physics? Let us see first what we need to study during the whole year round. The curriculum of physics consisting of two parts. One is theory, that is of 70 marks. The other is practical, that is of 30 marks. What we need to do in practical? See first. We need to carry out 15 practicals in the whole academic session and 6 activities along with these 15 practicals plus 1 investigatory project we have to do. Now what is the theory syllabus? Syllabus of theory says it is consisted of 10 units. Class 11 theories part is consisting of 10 units. The first unit is physical world and measurement. This is consisting of 2 chapters. Chapter 1 physical world and chapter 2 system of units and measurement. This chapter is of 3 marks. Now we come to the unit number 2. Unit number 2 is kinematics. Kinematics is again consisted of 2 parts, that is chapter 3 and chapter 4. Chapter 3 and chapter 4 are system motion in a straight line and motion in a plane. These 2 chapters combinedly having 10 marks. दोनों के 10 marks होंगे. Unit number 3 consisting of laws of motion. The name of unit number 3 is laws of motion. It is consisted of chapter 5. Chapter 5 is again laws of motion. It is of 10 marks. It is one of the most important chapter to target because it is single chapter of 10 marks. In unit number 2 you will see 2 chapters which are of large size. Motion in a straight line and motion in a plane. Both are very large chapter and both are of 10 marks. So chapter 5 itself is a very important chapter. Now we move on to unit number 4. Unit number 4 is work, energy and power, and the name of chapter itself is the same. Chapter 6 work, energy and power. This unit consisted of 6 marks. इसमें 6 marks होंगे. These 6 marks are again easy to target. Next unit is motion of system of particles and rigid body. This unit is of 5 marks and consisted of chapter 7 system of particles and rotational motion. In short, I will call it SPRM, system of particles and rotational motion. This is of 5 marks. At last, unit number 6. Unit number 6 is of 6 marks and it is the name of unit and chapter itself is same, that is gravitation. Chapter number 8, unit number 6. So these 8 chapters or 6 units consisted of 40 marks are kept in book 1. NCERT का first book इन 6 unit को accommodate करता है. तो first book consisted of 8 chapters and 40 marks. Now we move on to the second book. Second book of NCERT. Because whole theory is divided into 2 books. The unit number 7, I am moving on to the bulk properties of matter, or you can call it properties of matter. Properties of matter or bulk properties of matter, it is the largest unit in the entire physics. Whether it is class 11th or 12th, it is the largest unit. But this unit is consisted of 10 marks again, consisted of 3 chapters. Chapter 9, mechanics of solids. Chapter 10 mechanics of fluids and chapter 11 thermal properties of matter. These 3 chapters consisted of 10 marks, containing 10 marks. Now we move on to the unit number 8
Thermodynamics. Thermodynamics is consisted of chapter 12. Name of chapter is thermodynamics itself. The weightage of this unit is 5 marks. Next unit is unit 9, kinetic theory of gases or behavior of perfect gases and kinetic theory of gases. The name of unit is behavior of perfect gases and kinetic theory of gases. This chapter itself, chapter 13, is of 5 marks. Now at last we move on to the last unit, that is unit number 10. Unit 10 is consisted of 2 chapters, waves and chapter 14 oscillation and chapter 15 wave. The name of unit itself is wave and oscillation and wave. The whole unit is of 10 marks. So this way second book ends with 4 units and these 4 units are of 30 marks. So this way 70 marks theory of class 11th is studied in 2 books. First book contains 8 chapters, second book contains 7 chapters. So overall 15 chapters we need to study in class 11 to get through. One more thing which is worth important, this is what to note. This is that in class 10th, up to class 10th you were passed by cumulative marking, means practical और theory के marks मिला के आप पास हुए थे. But here in class 11th and 12th you have to pass separately, means you have to get through practical by getting 11 or more marks. You have to get through theory by getting 23 or more marks. So this way you need to pass in theory and practical separately. Now we will move on to the syllabus part. So students, let us begin with the unit 1, physics. Unit 1 name is physical world and measurement. We are going to start chapter 1, the physical world. In this chapter we have to study very nominal things about physics. First we are going to describe physics. What is physics? Physics is the branch of science that deals with the study of nature and natural laws. Basically physics word is derived from the Greek word physis. Physis means in Greek is nature. So physics is the study of nature and natural laws. Or you can define as physics is the study of everything from microscopic to macroscopic objects. फिजिक्स एक माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स तक की टोटल स्टडी है. यानी माइक्रोस्कोपिक मतलब द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज लाइक एटम, न्यूक्लियर, पार्टिकल से लेके टू द मैक्रोस्कोपिक यानी वेरी लार्ज डायमेंशंस लाइक टेरेस्ट्रियल यानी समथिंग बिलोंगिंग टू अर्थ और एस्ट्रोनॉमिकल यानी आसमान में जो सब कुछ है, इन सारी ऑब्जेक्ट की स्टडी को भी हम फिजिक्स कहते हैं. और यू कैन सिंपली कॉल फिजिक्स इज फादर ऑफ ऑल साइंसेस बिकॉज all the sciences are nurtured under the physics. फिजिक्स के नीचे ही, फिजिक्स के छत्र छाया में ही बाकी सारी साइंस पनपती हैं. That's why physics is called father of all sciences. So here we can conclude that physics is one of the vital subject, one of the fundamental subject of science, and it is the foundation stone of all engineering and technological aspects. It is hardly impossible to devise a new device, new technology without the basic knowledge of physics. What are the key branches of physics? What are the important branches of physics? The first important branch of physics we are dealing about is mechanics. Mechanics is the study of forces, motion, rays. जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था वो सारा का सारा mechanics का पार्ट है. Number 2, thermodynamics. Thermodynamics is the study of heat, temperature, internal energy, entropy, enthalpy or whatever, yani everything about heat and its behavior, that is covered in thermodynamics. So thermal physics it is called. Next, electrodynamics. Electrodynamics is a vast physics that covers from electricity to magnetic field to electromagnetic waves. ये सब की स्टडी के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है ऑप्टिक्स. Once again a very important branch of physics that deals with the study of light and its principles. Class 10th में आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा.
तो लाइट की जितनी भी स्टडी है, लाइट के प्रिंसिपल्स जितने भी पढ़े जाएंगे, जो भी फिनोमेना है, चाहे वो लाइट का वेव बिहेवियर हो, चाहे उसका पार्टिकल बिहेवियर हो, सब कुछ ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाता है। देन कम्स अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड एंड इट्स प्रिंसिपल्स। साउंड और साउंड के प्रिंसिपल्स को स्टडी हम करते हैं अकाउस्टिक्स में। देन कम्स क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स is the physics that is a special physics और आइंस्टाइनियन फिजिक्स इट इज नॉन। क्वांटम फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, यानी मटेरियल जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल चलते हैं उनके साथ हम एक स्पेशल स्टडी कैरी आउट करते हैं, जो स्टडी होता है क्वांटम फिजिक्स में। देन एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। एटम, न्यूक्लियाई और पार्टिकल की जो स्टडी है वो एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स या समटाइम्स इट इज नोन एज पार्टिकल फिजिक्स, इसमें कही जाती है। देन कम्स द एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन स्पेस। स्पेस में जितनी भी स्टडी है दैट इज कैरिड आउट अंडर एस्ट्रोनॉमी। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है जियोफिजिक्स, यानी स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। दिस स्टडी इज कॉल्ड जियोफिजिक्स। तो दीज आर द 9 मेजर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। देयर आर some sub branches also we will discuss in the due course। जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां इनको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मेजर 9 ब्रांचेज हैं। अब हम इसके बाद आगे देखेंगे 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर और इसके बाद 4 फंडामेंटल कंजर्वेशन प्रिंसिपल। 4 बेसिक फोर्सेज इन फिजिक्स। बेसिक मींस फंडामेंटल, ऐसे फोर्स जो ओरिजिनल है, जो किसी से पैदा नहीं होते, रादर बाकी सारे फोर्सेज इन्हीं से जनरेट होते हैं। तो यहां पर मैं आपको टेबल की फॉर्म में इसको स्टडी करा रहा हूं। ये टेबल आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सबसे पहले यहां पर मैंने लिया सीरियल नंबर 4 फोर्स है फिजिक्स में जो फंडामेंटल है। यहां पर नेमो फोर्स, यहां पर उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, अगर पहला 1 है तो दूसरा उसके मुकाबले कितना होगा। फिर इनके एक्सचेंज पार्टिकल, यानी किस पार्टिकल की टर्म्स में एक्सचेंज होते हैं, एक बॉडी से दूसरे पे जाते हैं। इसके बाद इसकी रेंज और फिर एरिया ऑफ इफेक्ट, ये लगते कहां पर है, कहां पर ये काम करते हैं। तो सबसे पहला फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। क्लास 9 में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है, नेचर का सबसे कमजोर फोर्स है। अगर मैं इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 मान लू, यानी अगर इस फोर्स को मैं 1 न्यूटन मान लू, तो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ मैंने 1 मानी है। इस फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन। ये आपके लिए क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। आपने पढ़ा था F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। फोर्स 0 तभी होगा जब r इंफिनिटी हो जाएगा, यानी ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये किन्हीं भी 2 बॉडीज के बीच में लगता है जिनमें मास हो, यानी दिस फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी 2 बॉडीज हैविंग मास। इसके बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये न्यूक्लियर फोर्स है, इसका नाम वीक है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10 की पावर 10। अगर ये 1 न्यूटन का है तो ये 10 की पावर 10 न्यूटन का है। 10 की पावर 10 न्यूटन का मतलब है कि 1 के सामने 10 जीरो लगा के हमने जो भी रखना होगा दैट विल बी 10 raised to the power 10। इसका एक्सचेंज पार्टिकल होगा बोसोन, और ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसकी जो डिस्टेंस है वो फर्मी के ऑर्डर की होती है। फर्मी, अभी मैं आपको इसके आगे डिस्कस करेंगे फर्मी के बारे में। और ये फोर्स कहां काम करता है, ये फोर्स काम करता है अमंग द न्यूक्लियॉन्स, बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इन ए डिकेइंग न्यूक्लियस। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में ये काम करता है अमंग द न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद तीसरा फोर्स हमारे न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, उनको हम कंबाइनली न्यूक्लियन कहते हैं। तीसरा हमारा जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो नोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ 10 की पावर 36 है। अगर ये 1 है तो ये 10 की पावर 10 होगा, और अगर ये 1 है तो ये 10 की पावर 36 होगा। यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स से 10 की पावर 26 टाइम्स ज्यादा, और ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 raised to the power 36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ये फोर्स।
इसके एक्सचेंज पार्टिकल का नाम है फोटोन, और ये फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये हमने क्लास 10 में पढ़ा था, जो दो चार्ज के बीच में काम करता है, जिसको हम कूलम्ब्स फोर्स कहते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये काम करता है बिटवीन एनी टू बॉडीज हैविंग चार्ज। जिन दो बॉडीज में चार्ज होता है उनके बीच में काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसका ऑर्डर है 10⁻38। अगर ये एक है तो ये 10⁻10 है, ये 10⁻36 है, और ये इससे भी 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी 10⁻38। इसके एक्सचेंज पार्टिकल का नाम है पाई मेसोन। पाई मेसोन इसका एक्सचेंज पार्टिकल है, और ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है जो फर्मी के ऑर्डर में काम करता है, यानी 10⁻15 मीटर के आसपास इसकी रेंज होती है। दिस फोर्स एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, ये भी न्यूक्लियॉन के बीच में काम करता है, बट इन स्टेबल न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस स्टेबल होता है तो वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, और जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, डिकेइंग होता है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो यहां से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। पहला, राइट द नेम ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, राइट द नेम ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे वीक ये है और सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, तो ये चारों नाम ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो योर आंसर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि राइट द नेम ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो फिर नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे आप, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है और ये सबसे वीक है। अगर वो कहता है राइट द ऑर्डर ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इनका टर्म्स ये है इंक्रीजिंग, और अगर ये डिक्रीजिंग कहते हो तो कैसे डिजाइन करेंगे इसको ध्यान दें। अगर मैं इसको 1 मान लेता हूं इसकी स्ट्रेंथ, तो इसकी स्ट्रेंथ 10⁻⁻2 और इसकी स्ट्रेंथ 10⁻⁻28 होगी, और ये 10⁻38 हो जाएगा। तो ये है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ और ये है डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ। अगर मैं यहां से देखता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखेंगे, और अगर यहां से मैं देखूं तो नीचे से ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर मैं जाता हूं तो फिर इसकी स्ट्रेंथ इस तरह से दिखाई जाएगी। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? योर आंसर इज पाई मेसोन। What is the exchange particle of fundamental force, gravitational force? Answer is graviton. So this way we will define these fundamental forces. This table is itself a group of questions. क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, आंसर सब कुछ इसी टेबल के अंदर है। तो इन 4 फोर्सेस की स्टडी के लिए टेबल सफिशिएंट है। Now we will see the conservation principles. Now at last, the 4 conservation principles, the 4 fundamental conservation principle in physics. फिजिक्स में 4 कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, जिनको हम 5 बना के पढ़ेंगे। सबसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास सेज मास ऑफ ए बॉडी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी बॉडी के मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी यूजिंग आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी E = mc²। So mass can be converted into energy using E = mc². This is called Einstein's mass energy equivalence. Now, second conservation principle is conservation of charge. Charge of a body can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to other in form of electrons. एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन खोती है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और दूसरी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। लेकिन पूरे सिस्टम को अगर इन दोनों बॉडी को मैं कंबाइन करके देखूं तब भी पहले जैसा ही चार्ज रहेगा, यानी इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। या तीसरा कंजर्वेशन प्रिंसिपल है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक बॉडी की एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट कन्वर्जन आपने देखा होगा माइक में,
आई एम स्पीकिंग, मैं माइक से बोल रहा हूं तो माई साउंड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो माइक्रोफोन में साउंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जबकि लाउड स्पीकर में वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में रिवर्ट बैक हो जाती है, साउंड में कन्वर्ट होती है। सिमिलरली जब हम फैन का स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हम एक जनरेटर को घुमाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो एनर्जी का कन्वर्जन हो सकता है, बट इसको हम ना क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इनिशियल और फाइनल एनर्जी सेम रहते हैं। At last we come to the conservation of momentum. Momentum is nothing but the product of mass and velocity. Mass और velocity का प्रोडक्ट है। मोमेंटम दो तरह का होता है, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को दो तरह से पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कहते हैं नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। यानी आई कैन से इफ इक्वल टू जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, देन एम वी इक्वल टू एम यू। वी फाइनल वेलोसिटी और यू इनिशियल वेलोसिटी आपने क्लास 9 में पढ़ लिया होगा। तो एम वी फाइनल मोमेंटम और एम यू इनिशियल मोमेंटम। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन के साथ होता है, और रोटेशनल मोशन यानी फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट होता है टॉर्क। तो मैं कहता हूं इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क मतलब रोटेशनल फोर्स, वो फोर्स जो एक बॉडी को रोटेट करवा सकता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो रोटेशनल फोर्स, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए बॉडी देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर टॉर्क का सिंबल होता है टॉ इक्वल टू जीरो, ये ग्रीक लेटर है, टॉ इक्वल टू जीरो, देन आई ओमेगा इक्वल टू आई ओमेगा नॉट। आई ओमेगा यहां पर होता है हमारा लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। यही है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ angular momentum. These were the four fundamental conservation principles. So in chapter 1 we have studied about physics, its various branches, the importance of physics, the four fundamental forces and four conservation principles. This is all about chapter 1. Now two things you have to do in your homework that you need to study. In your NCERT book appendix 1 at last, टेबल में पीछे बुक में पीछे टेबल दिए हुए अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 है। अपेंडिक्स 1 में टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2, एक में ग्रीक अल्फाबेट है और दूसरे में सफिक्स और प्रीफिक्स है, कि किसी के बॉडी के पहले क्या प्रीफिक्स हम लगाएंगे तो उनकी स्टडी है। ये आप सेल्फ स्टडी करेंगे, हम अगली क्लास में इसको डिस्कस भी करेंगे। सो दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।